Good morning everyone, this is Shivam Singh. Today we will start study of economics for UPSC and state PCS. जैसा कि आप लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स को बहुत टफ माना जाता है, बट बिलीव मी आई विल एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल एंड इजी मैनर. मैं करीब 60-70 क्लासेस लूँगा, बट विश्वास रखिए बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा. चलिए चालू करते हैं अपने पहले लेक्चर को. देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स में. इकोनॉमिक्स को पहले समझते हैं. व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स दो भागों में बैठा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्मॉल एस्पेक्ट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी बिगर एक्सपेक्ट. उसके बाद हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझेंगे. देन आफ्टर वी विल गो विथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दिस इज डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट लेक्चर. After that, in second lecture, we will try to understand what is inflation, types of inflation, how to calculate inflation. Then we will go with monetary policies. Let's see what is economics. Economics is a Greek word which is derived from oikonomia. It is a combination of two Greek terms, oikos and nomos. ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड एंड फैमिली एंड नोमोज मीन्स मैनेजमेंट. Hence it can be said that economics is a discipline which deals with the study of household management. It tries to understand it how a family manages its expenditure using its limited resource. Let's see what definition we have to use in UPSC. The definition is the process of production, distribution, and consumption of goods and services constitute the economy, which is studied under the subject economics. Let's see this. Production, distribution, then consumption of goods and services. Okay, you have to learn here three keywords: production, distribution, and consumption. That constitute economics, and we studied this broad aspect under economics. Let's see two classification of economics. Microeconomics means smaller aspect and microeconomics मतलब larger aspect. The classification was given by Norwegian economist Ragnar Frisch, who was the first recipient of Nobel Prize in Economics, along with Jan Tinbergen of Holland. The Nobel Prize of Economics, first given by Sveriges Riksbank Prize in Economic Service by Central Bank of Sweden on its 300th anniversary, and it is the oldest central bank in the world. Let's see what is microeconomics and macroeconomics. Difference between microeconomics and macroeconomics. Micro and macro, both words come from Greek term. जैसे कि मैंने बता ही चुका हूँ, माइक्रो इज ए स्मॉल एज वेल एज मैक्रो इज लार्ज एक्सपेक्ट. लेट्स सी. Microeconomics deals with the smaller aspects of economy, and this is as a basic unit of economy. It constitutes basic unit, foundation and pillar of economics. Without macroeconomics can't balanced. Microeconomics deals with the larger aspect of economy. Microeconomics deals with the study of economic activities at the level of family and the level of firm. The keywords are level of family and level of firm. It deals with the study of demand and supply and also study of market. But macroeconomics, study of economics activity at the level of entire country. It deals with economic growth, economic development, national income, inflation, unemployment, employment, economic policies of government as well as central bank policies. Microeconomics serves as a foundation and pillar of economy over which microeconomics lies. Microeconomic जैसे कि आपके घर के नीचे एक पिलर लगाते हैं, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स
पूरे इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पिलर है. विदाउट अंडरस्टैंडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स you can't understand macroeconomics. See here, same thing given in the form of example. Let's see. Increase in demand for individual family will automatically ensure increase in production. Hence economic growth. Yes, individual family come from micro, production and economic growth come from macroeconomics. अगर एक फैमिली अपने डिमांड को बढ़ाता है तो कंपनी वाला प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उस पर जीएसटी टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक लेड टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, देन इट इज ऑब्वियस दैट द डिमांड फ्रॉम इंडिविजुअल फैमिली विल फॉल डाउन. जैसे कि आप देख सकते हैं, सेंट्रल बैंक अगर लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो ऑब्वियस है कि फैमिलीज इंडिविजुअल पर्सन लोन लेना बंद कर देगा. लोन नहीं लेगा तो पैसे नहीं रहेंगे, पैसे नहीं रहेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगा. तो सी हियर, सेंट्रल बैंक इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फैमिली इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो. बोथ इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर. सो वी नो फ्रॉम हियर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी कंप्लीटली सेग्रेटेड फ्रॉम ईच अदर. दे बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर. Let's see what is economic growth and economic development. What do you understand by growth? You know, growth means you grow, your figures growth, your age grow, means grow in figure. You go in another class means your figure grows 1 to 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6 and continuous. You are growing every year to another class, going every year in another class. Like that, same here. Economic growth is a quantitative concept. Growth refers to increase in production and increase in GDP over a time of period. Hence, it is concerned with number. जैसा कि आप लोग 1 से 2 क्लास में जाते हैं, 2 से 3 से जाते हैं, 3 से 4 जाते हैं, वैसे ही प्रोडक्शन बढ़ता है. जैसे कि राइस का प्रोडक्शन साल में 10 कुंटल हो रहा है, वो 20 कुंटल हो गया, वो 30 कुंटल हो गया, तो इसे ग्रोथ कहते हैं. जैसे GDP आज हमारा 3 ट्रिलियन नियरली 3 ट्रिलियन के आसपास चल रहे हैं. 4 ट्रिलियन होगा, 5 ट्रिलियन हो जाएगा, तो उसे ग्रोथ कहते हैं. और अगर उस ग्रोथ का फायदा सोसाइटी के हर व्यक्ति को बराबरी से मिले तो उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव अप्रोच. ऑन अदर हैंड, ग्रोथ विथ इक्विटी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मतलब इसका ये है कि बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन reaches to entire population, it is termed as economic development. Hence, equitable distribution of resources leading to improvement in living standard is economic development. It can be said that economic growth is essential for economic development, but it is not sufficient. Development also requires initiatives like proper redistribution. जैसा कि आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इसेंशियल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, परंतु सफिशिएंट नहीं है. अब प्रोडक्शन हो रहा है, कंपनी वाले उस पर दाम बढ़ाए जा रहे हैं, अमीर ले रहे हैं, गरीब तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो उसे आप डेवलपमेंट नहीं कहेंगे. तो इसीलिए प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनिशिएटिव लाइक प्रॉपर redistribution. Let's see last topic of our first lecture, inclusive development and sustainable development. Inclusive development में 2 चीज़ होता है, सबका डेवलपमेंट हो और सभी प्रकार का डेवलपमेंट हो. डेवलपमेंट ऑफ ऑल, डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट. लेट्स सी फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ ऑल. हाउ वी डेवलप ऑल. एवरीबडी should be made a party to process of development and nobody lag behind. डेवलपमेंट जब हो कोई पीछे ना छूटे, निचले स्तर का व्यक्ति भी डेवलप्ड हो, उसका भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े. तो इन इंडियन इकोनॉमिक्स इट वी टेक फ्रॉम भागवत गीता अंत्योदया एंड सर्वोदया. अंत्योदया मीन्स अपलिफ्टमेंट ऑफ दोज हु इज बॉटम ऑफ हायरार्की, विच विल ऑटोमेटिकली इंश्योर सर्वोदया, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल. अगर सोसाइटी का सबसे गरीब व्यक्ति ऊपर उठेगा तो ऑटोमेटिक सोसाइटी का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा.
तो वी लर्न हियर फ्रॉम, वी टेक दिस वर्ड फ्रॉम भागवत गीता, अंत्योदया एंड सर्वोदया मीन्स upliftment of those who is bottom of hierarchy which will automatically ensure सर्वोदया। तो आप लोग यूपीएससी क्रैक करने के बाद आईएएस बनेंगे तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि आप सोसाइटी के सबसे निचले स्तर के लोगों के लिए काम करना है, ना कि मनी लैंडर, प्रॉपर्टी डीलर्स, लाइक रिच फैमिलीज, रिच पीपल। यू हैव टू वर्क फॉर वीक पर्सन ऑफ सोसाइटी। Let's see one example, which is theory of justice propounded by John Rawls। जॉन रॉल्स आपने दिया था। उन्होंने बोला कि चैन की ताकत, चैन मतलब चैन समझ रहा है ना, सिक्कड़, चैन की ताकत उस पॉइंट पे होती है जहां सबसे वो वीकेस्ट होता है, क्योंकि अन्यथा जगह आप कितना भी स्ट्रांग बना लें, अगर किसी एक जगह वो वीक है तो खींचेंगे तो वहां से टूट ही जाएगा। उसी तरह का सोसाइटी में एक दो व्यक्ति, कुछ व्यक्ति अगर कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तो सोसाइटी को गंदा ही माना जाएगा, क्योंकि वो गंदा ही रखेंगे। इसलिए सोसाइटी के हर व्यक्ति को ऊपर उठाइए। विच स्टेट्स दैट नो चैन इज स्ट्रांगर देन इट्स वीकेस्ट लिंक। इट मीन्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ चेन इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स वीकेस्ट लिंक। सिमिलरली नो सोसाइटी इज स्ट्रांगर देन इट्स वीकेस्ट मेंबर। Hence, in order to strengthen the entire society, it is the weakest member who had to be strengthened. Let's see development in all aspect, means economically, socially and politically। उन्हें पॉलिटिक्स में भी हिस्सा दीजिए, उन्हें सोसाइटी के फंक्शंस में भी हिस्सा दीजिए, उन्हें अपने साथ उठने बैठने के भी हिस्सा दीजिए, इकोनॉमिक बूस्ट करिए उनको, हाउ दे अर्न, उन्हें इसमें भी सहयोग करिए। देन दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ऑल इन एवरी एक्सपेक्ट। एंड सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे आप लोग जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि जिससे हानि ना हो किसी को, इन्वायरमेंटल फैमिली हो। सस्टेनेबल तो सबके लिए जाना हुआ वर्ड है। तो देखते हैं, यूज ऑफ रिसोर्सेज इन इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर, इंश्योरिंग दैट दे रिमेन एलिवेबल इवन टू नेक्स्ट जनरेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सोर्स का ऐसे इस्तेमाल करिए कि ना इन्वायरमेंट को नुकसानी हो और अपने आने वाली जनरेशन, अपने बच्चों, अपने पोतों के लिए भी छोड़ना है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विच इज रूटेड in the belief that the earth and its resource have not been inherited by us from our ancestors, but they are something that we owe to next generation। हमें ये सोचकर इसे खर्चा करना है कि इसे हमारे पिताजी ने नहीं दिया है, हमारे एंसेस्टर्स ने नहीं दिया है, पर हमें छोड़ना है अपने आने वाले जनरेशन के लिए। ये हमारा कर्तव्य है। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर को। एंड थैंक यू सो मच। Watch this, subscribe this, and believe me, I will explain whole economics in very easy manner. Thank you so much. Jai Hind.